वो शेल नहीं पढ़ा था उसको में इंटरप्रेट किया गया था। याद है ना Yes, ये sir. एग्जाम्पल? ठीक है, बी वाली आ जाए, बी वाली पे आ जाए। The word पढ़े। may, the word may appearing in section 431, subsection 1 of the National Land Code was in question. The court took the view that the ownership of immovable property is a very valuable right and is a fundamental right by Article 13 of the Federal Constitution. Accordingly, any deprivation of immovable property must be in strict compliance of both substantial and procedural law. The effect of an order for sale, including the holding of a public auction, are designed to permanently deprive a registered proprietor of his land. It is of utmost importance that such deprivation is undertaken in strict compliance of the law. Thus, the word shall was read instead of the word may. अच्छा, अब यहाँ पर कानून में जो है वो लिखा हुआ है वर्ड में। कहाँ है? सेक्शन 431 सब सेक्शन 1 ऑफ द नेशनल लैंड कोड। अब ये सेक्शन 431 ऑफ द लैंड कोड हमें पढ़ते हैं, पढ़े क्या लिखा हुआ है? Without prejudice to any other method of service, a notice may be served on a person or body for the purposes of this Act by delivering the notice to the person or by delivering the notice at the person's usual or last known place of abode or business to his servant or to an adult member of his family, or at the body's registered office or usual or last known place of business to its servants or agent. इस केस में कानूनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी अक्वायर करनी है तो उसको जो है प्रॉपर्टी, अगर किसी की लैंड अक्वायर करनी है तो वहां पे आप नोटिस मे बी सर्व ऑन द पर्सन ऑन द ओनर, उसके ऊपर नोटिस मे बी सर्व। अब यहाँ पे जो मे बी सर्व्ड है उसको कोर्ट ने मे नहीं पढ़ा, उसको शैल बी सर्व पढ़ा इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की अदालत का कहना यह था कि प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो एक वैल्यूएबल राइट है, एक फंडामेंटल राइट है, तो वहाँ उनका आर्टिकल 13 ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। देयरफॉर कोई अगर किसी भी शख्स को डिप्राइव करना है इमूवेबल प्रॉपर्टी से तो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होनी चाहिए सब्सटैंशियल और प्रोसीजर लॉ की। और यहाँ पे जो नोटिस की जो रिक्वायरमेंट है वो नोटिस की रिक्वायरमेंट में यहाँ पे मे नहीं आप पढ़ेंगे, इसको आप शैल बी सर्व पढ़ेंगे और यहाँ पे नोटिस हर सूरत में आएगा। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. ठीक है, अगली वाली एग्जांपल देखें, सी वाली। The word shall in Section 11 of the Madhya Pradesh Opium Act was held to be a directory provision, even though the word shall was used. In State of Madhya Pradesh versus Azad Bharat Finance Co. and another, an excise officer, while searching a truck parked at a bus station, found opium in the truck and challaned 5 persons, including the owner, for the alleged illegal possession and the transportation of the opium. The owner of the truck had taken a truck under a hire purchase agreement from a third party. He was acquitted, but the lower courts ordered that the truck be confiscated on the basis that the provision was mandatory and it had to be forfeited in all circumstances. However, the apex courts said that the word shall occurring in section 11 of the act means may, and that it confers discretion on the court to confiscate the vehicle provided it belongs to the offender. It said that the owner of the truck had neither authorized the offender to transport opium, nor was there nor was there any reason to believe that the owner knew that his vehicle was likely to be used for transporting contraband opium. Therefore, it should not be confiscated because confiscation in such circumstances would be tantamount to punishing a person who has not committed any offense under the Opium Act. ये सिनेरियो समझ में आया? जी सर। बताएं।
सर इसमें ये मतलब एक चीज ट्रांसपोर्ट कर रहा है ओपीएम, तो उसका जो है वो मतलब नहीं कर सकता उसको ट्रांसपोर्ट, लेकिन इसको पता नहीं है ये चीज, और व्हीकल इसने लिए किसी थर्ड पार्टी से। तो एज पर ओपीएम लॉ एक्ट तो वो कहता है कि इसकी वजह से किसी और को सजा नहीं होनी चाहिए, जहां तक मुझे समझ में आया सर। तो उसको क्या कहते हैं सर, कन्फिस्केटेड जो है वो उसको नहीं अलाउ करने दे रहे सर। कोई और बताए? सर हेलो हेलो। जी जी। सर मैं बताऊं, थोड़ा बहुत मुझे भी समझ में आ गया है इसका। आप ऐसा करें, मुझे पहले बताएं कि फैक्चुअल पोजीशन क्या है, वो पहले बता चले हमें। सर सेक्शन 5 ओपिनियन एड का वो ऑर्डिनरी जो अपना होते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, उसको डिस्क्रिशन पावर देता है कि आप लोग अपने डिस्क्रिशन पावर भी यूज कर रहा है कि मतलब लेन देन और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बिजनेस उस तरीके से कलेक्ट ना हो रहा हो जिस तरीके से प्रोविजो बता रहा हूँ। तो वहां पर मेरे ख्याल से सबऑर्डिनेट को लेजिस्लेशन को ये अथॉरिटी दी गई है कि आप अपने डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं ओपिनियनेट के मुताबिक। बाबा मैं आपसे फैक्चुअल पोजीशन पूछ रहा हूँ, फैक्चुअल पोजीशन क्या है इस केस में? सर इसमें फैक्चुअल पोजीशन ये है कि सर एक ट्रक है सर, वो कहीं पे पार्क हुई थी, तो उसको जब सर्च किया गया तो उसमें ओपीएम मिला सर। सही ठीक है है। सर। तो सर सही है। उसमें जो 5 बंदे थे उन सबको चालान किया गया, और क्योंकि ये इलीगल पोजीशन में था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दो ओपीएम से। तो सर उसमें से जो ट्रक का ऑनर है उसको तो क्विंटल डिक्लेयर कर दिया, बाकियों को सर मुझे जो समझ में आ रहा है वो यहाँ तक है सर। 5 बंदों का चालान होता है, क्रिमिनल चालान होता है उनका, जिसमें से इंक्लूडिंग द ट्रक ओनर जो है। अब ट्रक ओनर को जो है उसको भी चालान कर दिया जाता है इन एडिशन टू अदर पीपल, कि आपकी ट्रक में से ओपीएम बरामद हुआ है, ये इलीगली आप ओपीएम लेकर जा रहे हैं और इसको इलीगली जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको चालान कर लिया जाता है। अब उस बंदे को तो एक्विट कर दिया जाता है, ओनर को तो एक्विट कर दिया जाता है इस बेसिस के ऊपर कि उसका अपना कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसका ट्रक जो है, जो उसने किसी थर्ड पार्टी से हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर लिया हुआ होता है, उसका जो ट्रक है वो कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है। क्योंकि कानून ये कहता था, जो ये मध्य प्रदेश ओपीएम एक्ट है, वो ये कहता है कि अगर किसी भी जो है व्हीकल से कोई इलीगल ड्रग बरामद होगी तो उसको उस व्हीकल को भी आपने कॉन्फिस्केट करना है। हम प्रोविजन की तरफ भी जा रहे हैं उसको देखने के लिए। अब उसको तो अक्विट कर दिया, लेकिन निचली अदालतों ने कहा कि ट्रक कॉन्फिस्केट कर लें ऑन द बेसिस के प्रोविजन मैंडेटरी है, और उसको हर सूरत में ट्रक को जो है वो जब्त करना है। हम प्रोविजन देखते हैं, प्रोविजन क्या कहता है, पढ़ें सेक्शन 11 फिजा। Section 11. In any case in which an offender or in which an offense under section 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, and 9F and 9 has been committed, the property detailed herein below shall be confiscated. So, Padu, the तो receptacles कौन सी जो जिन जिन प्रॉपर्टीज का जिक्र है यहाँ पर, उन सबको जो है वो कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा, शैल बी कॉन्फिस्केटेड। किनका जिक्र है, पढ़ें। receptacles, packages, and coverings in which any opium liable to confiscation under this section is found, and the other contents, if any, of the receptacle or package in which such opium may be concealed, and the animals, carts, vessels, rafts, and conveyances used in. अच्छा, तो यहाँ पर जो व्हीकल है वो भी इसमें फॉल करती है इस चीज में, ठीक है, कन्वेंस में फॉल करती है। तो उन्होंने कहा क्या कि यहाँ पर जो है आप व्हीकल को भी कॉन्फिस्केट कर लेंगे, लेकिन अदालत ने कहा, निचली अदालतों ने कहा कि प्रोविजन मैंडेटरी है, ये भी यहाँ पे कॉन्फिस्केट होगी। और क्योंकि वर्ड शेल का वर्ड यूज हुआ है उसको, क्योंकि यहाँ से ओपियम बरामद हुई है, तो ओपियम भी जब्त होगी, और जिस व्हीकल में वो कैरी की जा रही है वो भी जब्त होगी। लेकिन अदालत जो जो
क्या कहना चाहिए, जो वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट थी, उनका कहना ये था कि बंदा तो एक्विट हो गया था, बंदा तो निचली अदालतों ने भी एक्विट कर दिया था, ओनर भी, लेकिन उन्होंने ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल है, वो जो व्हीकल को कहा था कि ये कॉन्फिस्केट होगी। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि व्हीकल को भी आपको छोड़ना है, उसको भी आप जब्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप ये वाली लाइनें पढ़ लें तो इसमें इसका जवाब है कि owner of the truck had never authorized the offender to transport opium, nor was there any reason to believe that the owner knew that his vehicle was likely to be used for transporting contraband opium. Therefore, it should not be confiscated because confiscation in such circumstances would be tantamount to punishing a person who has not committed any offense under the Opium Act. तो यहाँ पर जो है owner of the truck had never authorized the offenders, नॉर है ही न्यू के उसके ट्रक में ओपीएम सब ट्रांसपोर्ट की जा रही होगी। तो लिहाजा इन सर्कमस्टांसेस में उसके ट्रक को जब्त करना जो है, इट वुड बी टेंटामाउंट टू डूइंग इनजस्टिस टू द पार्टी। ठीक है, क्लियर हो गई मिसाल? जी जी Yes, सर, sir. जी सर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डी वाली मिसाल के ऊपर। डी वाली पढ़िएगा। In Prida versus Transamerica Institute Finance Corporation, Transamerica Insurance Finance Corporation, TIFCO, a premium finance company, mailed the insured a notice of cancellation stating that the motor vehicle liability insurance policy was cancelled. यहाँ As से क्लियर है बात? yes, sir. क्या कह रही है बात यहाँ पे? सर मेल किया है फाइनेंस कंपनी ने कि जो आपकी जो मोटर व्हीकल की इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो कैंसिल कर दी गई है। सही है, आगे पढ़े। एज डी As required by section 627 subsection 8483 Florida statutes 1993, the notice of cancellation contained language advising the insured that certain insurance coverage is required by the financial responsibility law. Section 627 8483 also requires that this language be in type or print of which its face shall not be smaller than 12 points. In the instant case, the required language was set forth in the notice of cancellation in contrasting red color. The language, however, was only in 9.5 point type. The plaintiffs moved for summary judgment, arguing that the 12 point type requirement of section 627-848 subsection 3 is mandatory. The plaintiffs further alleged that because TIFCO failed to strictly comply with the 12 point type requirement, the insurance policy was not cancelled. The court found that the use of the smaller type size did not nullify the notice, as section 627 subsection 848 subsection 3 did not provide for the consequences of a violation of that section. ये क्लियर हुई एग्जाम्पल? यस सर। क्या इसमें क्या बात हो रही है सर? सर इसमें ये जो नोटिस भेजा गया था सर कैंसिलेशन हाँ, का, हाँ, तो सर एज पर सेक्शन वो कह रहे हैं कि ना वो इन टाइप था ना प्रिंट था, और जो उनके फॉन्ट्स थे वो 12 पॉइंट से कम थे, 9.5 पॉइंट टाइप थे सर। हाँ, तो एज पर दिस सेक्शन ये जो है, जो उन्होंने कैंसिलेशन का नोटिस भेजा है वो नल मतलब नल एंड वॉइड है, किसी काम का नहीं है। हाँ। तो सर कोर्ट कह रही है कि ऐसी तो कोई बात उसमें वायलेशन की लिखी नहीं हुई इस सेक्शन में, इसलिए साइज मैटर नहीं करती, जहां तक मुझे समझ में आई है बात सर। तो यहाँ पे शेल को कोर्ट ने शेल नहीं पढ़ा, इसको मे पढ़ा। सही है? जी जी कानून सर। की लैंग्वेज थी, वो ये कहती है कि जब आप किसी को नोटिस ऑफ कैंसिलेशन भेजेंगे, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी का भेजेंगे, तो उसमें जो फॉन्ट का जो साइज होगा वो 12 फॉन्ट होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें, आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है, ये सारा 12 फॉन्ट है। अब नोटिस जो है वो किस लैंग्वेज में, एक तो वो जा रहा है लाल रंग में और एक वो जा रहा है 9 में। सही है? अब ये 9 फॉन्ट है, ये 9 है, ये 9.5 था, तो मतलब मे बी अ लिटिल बिट 9.5 कैसे करें इसको? एक मिनट, ये तो 10 पे जा रहा है, आई डोंट नो 9.5 कैसे होगा। 9 भी रख के देख ले, 9 और 10 में कोई खास फर्क नहीं है। तो लेट्स लुक एट 10 फॉर एग्जांपल। ठीक है, 9 को ही रख के देख लेते हैं। तो अगर इस तरह से अगर जाएं तो इसके ऊपर
किया केस ले आए कि जनाब चूंकि वो 9.5 फॉन्ट में भेजा गया था तो लिहाजा, और रेड कलर में भेजा गया था, तो यहाँ पर जो है वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हुई है, और जो इंश्योरेंस पॉलिसी जो कैंसलेशन भेजी गई है वो इनवैलिड है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, इस तरह तो जो है इस तरह को, दिस इज नॉट अ वायलेशन, क्लियर वायलेशन एट ऑल। क्यों, बेशक यहाँ पे शेल का वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन ये शेल चूंकि लिखा हुआ है लेकिन कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिए गए, अगर इससे कम इस्तेमाल करेंगे तो कोई नुकसान होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा इस शेल को कोर्ट ने में पढ़ा। क्लियर होगी बात? जी जी सर, जी सर। अच्छा, एक एक बात है सोचने वाली कि कोर्ट का ये डिसीजन समझ में तो आता है, लेकिन अगर फॉन्ट इससे भी कम होता, अब अभी ये फॉन्ट 3 है, पढ़ने में आ रहा है? No, sir. नहीं देखें, सर। हम देखते हैं यहाँ तक के लोगों की नजर पे देखते हैं, चलो ये 7 है, 7 नजर आ रहा है? Yes, sir. ये तो आ रहा है probably. जी 6, जी सर। यस सर। 5, No, sir. थोड़ा मुश्किल से। 5 में आपको आंखें स्क्विंट करके पढ़ना पड़ेगा, पर नजर में आ रहा है कि है क्या? अच्छा, जी 4 और 3, 2, 1। चलो 1 में अगर आप भेजेंगे और कहेंगे ये हमने आपको कैंसिलेशन का नोटिस भेज दिया है, तो अब बताएं क्या लिखा हुआ है, ये किसी को पढ़ने में आ रहा है? नो सर। नो सर। अच्छा, सर फिर भी दूसरी सर चीज, अब फॉन्ट। हम दूसरी चीज करके देखते हैं यहाँ पर। अब ये फॉन्ट चेंज करके हम देखते हैं, हमें एक मिनट रुक जाए जरा। अ, हाँ जी, ये आपका कैंसिलेशन का नोटिस आ रहा है। सर ये तो चाइनीज में लिखा हुआ है। चाइनीज जैसे थोड़ी होती है। सर ये भूतों की लैंग्वेज है। तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है ये किसकी जबान है। बहरहाल अगर ऐसे जाए तो फिर अदालत का क्या कंक्लूजन होगा? खैर ये तो अब एक assumption है कि हम जो जज करने की कोशिश करें, तो बहरहाल ये पोजीशन है। तो दिस इज अ एग्जांपल फॉर अ डिफरेंट केस, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि अदालत का डिसीजन चेंज भी हो सकता है अगर जो है वो रिक्वायरमेंट्स, कोई केस के फैक्चुअल सिनेरियोस कुछ और होते हैं अगर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात? जी जी सर। सर लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो फिर भी डिसीजन सेम हो सकता है सर। परहैप्स सेम भी हो सकता है। जी सर, क्योंकि सर कॉन्सिक्वेंस तो है नहीं वायलेशन के ना सर, वो यही आर्ग्यूमेंट देंगे तो। हाँ, ये भी बात सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज की तरफ। पढ़ें। The expression non obstante means notwithstanding. A section sometimes begins with the phrase notwithstanding anything contained, etc. Such a clause is called a non obstante clause, and its purpose is to give the provision contained in the non obstante clause an overriding effect in the event of a conflict between it and the rest of the section. Thus, there is generally a close relation between the non obstante clause and the main section, and in case of ambiguity, the non obstante clause may throw light on the scope and ambit of the rest of the section. The very purpose of non obstante clause is that the provision shall prevail over any other provision, and that other provisions shall not be of any consequence. In case there is any inconsistency or a departure between a non obstante clause and other provisions, one of the object of such a clause is to indicate that it is the non obstante clause that would prevail over the other clauses. ठीक है, तो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज जहां पे भी यूज होती है तो उसका मकसद ये होता है कि वो ओवरराइडिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है ओवर रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस और ओवर रेस्ट ऑफ द सेक्शंस।
और इसका एक यहाँ पे हम एक एग्जांपल कोई देख लेते हैं, ये देख लेते बी वाली एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशन वाली पढ़े, ये क्या कहती है? Article 44 of the Constitution of Pakistan provides, subject to the Constitution, the President shall hold office for a term of 5 years from the day he enters upon his office, provided that the President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office. अच्छा, ये समझ में आया है? जी सर। बताएं क्या लिखा है इसमें? सर एक तो टेन्योर लिखा हुआ है सर, उसकी प्रेसिडेंट के ऑफिस का सर। सही है, क्या और टेन्योर है? ये 5 ईयर्स है सर। और सर दूसरे में है कि जब तक कोई दूसरा नहीं आ जाता उसका सक्सेसर, तब तक वो ऑफिस नहीं छोड़ सकता, या तब तक वो ऑफिस। मतलब अगर उसका सक्सेसर जो है वो 5.5 साल के बाद आता है, 5 साल तो उसका ओरिजिनल टेन्योर है, लेकिन टेन्योर खत्म होने के बाद जब तक सक्सेसर ऑफिस में नहीं आता वो कंटिन्यू करेगा ऑफिस में एज प्रेसिडेंट। तो अगर 5.5 साल बाद सक्सेसर आता है, 6 साल बाद आता है सक्सेसर, तो उस वक्त तक वही प्रेसिडेंट रहेगा। बेशक उसका टर्म एक्सपायर हो गया है, बट ही वुड स्टिल बी कंसिडर्ड द प्रेसिडेंट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 44। ठीक है, प्रोविजो में ये बात लिखी हुई है, नॉट, अब ये नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है। ठीक है, जी सर। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब हमारे पास इसमें एक टॉपिक और बचा है, 2 टॉपिक्स बचे हैं, और एक तो वो ये है जो क्या कहना चाहिए, कंजंक्टिव और डिसजंक्टिव सेंस वाले। और इसके बाद जो हमारे पास जो है जुडिशियल लेजिस्लेशन का टॉपिक है, लेकिन ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, कंजंक्टिव और डिसजंक्टिव सेंस वाला जो है। और इसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे जनरल क्लॉजेस एक्ट की तरफ। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, आज की क्लास थोड़ी जल्दी खत्म हो रही है, तो इसको हम यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके फिर, सर। ओके फिर, अल्लाह हाफिज। वैसे ही 10 मिनट बचे हैं। भला। अल्लाह हाफिज।